Good morning, student. How are you all? Hope you all are very great. So today I am going to take up some examples of letter of complaint. So in your syllabus, there are two type of complaint letters. Like official letters or business letters. So in this particular video, we'll see the example of official complaint letter or the business complaint letter. All right. So as you all know that we have already done the official or business complaint letter in the previous video. So in this video we'll see some example. So in the previous video we saw the format of the complaint letter and how to write the complaint letter, okay, and what is the key point that should be remembered while writing the complaint letter. We all these things we already seen in our previous video, that is official or business letter complaint letters. All right, let's see some example of the complaint letter. So as you all know, I'll show you the format. Once again we'll see the format. It will be easy to better understanding. All right, so the first is write the sender address. All right, so यहाँ पे mention नहीं किया sender address. All right, so the first is sender address. तो सेंडर एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन किया. सी इफ क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वही सेंडर एड्रेस लिखना है, एंड इट्स नॉट गिवन तो अकॉर्डिंग टू यू इमेजिन सम इमेजिनरी आप एक एड्रेस लिख लेंगे, बट वो प्रिपेयर पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ मुझे. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया AZ 1256 Mayur Vihar Phase 1 Delhi 94. This is the address of the sender. Then date, we just put the date, and the date I already tell you the format of the date. So the date March 25th 2019 या 25th March 2019. So यहाँ पे 2019 मेंशन है. ऑलराइट, तो हम 2021 यहाँ पे कर लेते हैं. क्लियर? तो ये 2021 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. Alright, so March 25th 2021 or 25th March 2021, both the format is correct. Alright, whatever is your choice, you can choose any of them. Alright, so next is designation and address of the receiver. अब आपको क्या लिखना है? डेजिग्नेशन लिखनी है, मीन जिसको आप लेटर दे रहे हो उसकी डेजिग्नेशन और उसकी एड्रेस आपको मेंशन करनी है. लाइक हमने यहाँ पे मेंशन की जो भी हमारा कंप्लेंट लेटर का हम लिख रहे हैं. सर द मार्केटिंग मैनेजर सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड C1262 साइन नगर ईस्ट. सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर. नेक्स्ट अप इज देन द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो डियर सर, डियर मैम और सर और मैम आप लिख सकते हो. सो नाउ वी विल कम टू द main body. So this part should be divided into 3 paragraphs. I told you so many times. So paragraph number 1, introduction of the complaint. With due regards, it is to be brought to your kind notice that, means you can write like this. This is the example. So the first paragraph is the introduction paragraph. So you can start like this: with due regards, it is to be brought to your kind notice that whatever your issue. Then the second paragraph is, I want to drag it but it's too tough. Okay. The second is the middle paragraph must contain all the details. So जो middle paragraph होता है उसमें आप सारी डिटेल मेंशन करेंगे, means your issues and your problems, your product जो भी डिफेक्टिव हुआ था उसके बारे में, मॉडल नंबर, बिल डेट, परचेसिंग डेट, and so all these things. Means the paragraph number 3rd. So in the paragraph number 3rd, while the last paragraph must express what would want the other person to do in the response of this letter. So in this paragraph you should write कि जो जिसको आप लेटर दे रहे हो, मतलब जो रिसीवर है, उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपके इस लेटर के. दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एनी लेटर. ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसी भी लेटर का. इट ऑल्सो एक्सप्रेस थैंक्स इन ब्यूटीफुल वर्ड्स.
सो यहाँ पे आपको थैंक्स भी उनको बोलना है जिसको भी आप ले रहे हो। नाउ द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग लाइन्स होती है जिन्हें सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, लाइक योर्स ट्रूली, ओबीडियंटली, सिंसियरली, फेथफुली, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। देन एट द एंड नेम आ जाएगा आपका विद साइन। आप एडिटोरियल लेटर्स में करते हैं, इसमें आपको साइन की जरूरत नहीं है, आप नेम मेंशन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू साइन यू कैन। सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर, formal letter. So let's start do some questions. So the question number 1, the unsanitary condition in your colony you are causing multiple disease, means बहुत unsanitary conditions है आपकी कॉलोनी में, उससे आपको क्या हो रहा है, मल्टीपल डिजीज आपकी कॉलोनी को फेस करनी पड़ रही है। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो हमारा रिसीवर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये हमारे रिसीवर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो गिवन नहीं है, बस योर कॉलोनी मेंशन किया गया है। ऑलराइट, सो bringing the problem to his notice and request him to take urgent action in the matter। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अनसेंट्री कंडीशन है उस पर एक एक्शन लिया जाए। सो यू आर दीपक और दीपा, इफ यू आर अ बॉय देन यू आर दीपक एंड इफ यू आर अ गर्ल देन यू आर दीपा। ऑफ देन योर एड्रेस, सी द नेम ऑफ द सेंडर एंड द sender address is given in this question, that is C2/8 Ankur Enclave, New Delhi, means this is your address, whatever you are, Deepa or Deepak, this is your address. All right, so the sender address and the receiver address, receiver designation mention है, receiver address mention नहीं है। All right, but the sender address is mentioned here. So the answer is, what was the sender address? C2/8 Ankur Enclave, New Delhi, this is the address. देन आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, वॉट एवर इज द डेट, 20 अगस्त, वॉट एवर 2021, 22, वॉट एवर द ईयर। देन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, हु इज द रिसीवर हियर, द म्युनिसिपल कमिश्नर, इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब एड्रेस, तो एड्रेस हम कुछ भी इमेज नहीं डाल सकते हैं, शादरा दिल्ली 110XX, ओके। देन डियर सर, क्या मेंशन करेंगे हम, डियर सर, सैल्यूटेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया। Then subject should be in 1 line or 2 or 4 words only. So the incendiary condition in the colony, subject क्या है, जो आपकी incendiary condition है, it's also given in the question. So it is very easy to understand this. So now the body of the letter. So I already told you the 3 parts होते हैं body के। So I have been a resident of Ankur Enclave. So first is the introductory part. So I have been a resident of Ankur Enclave for the past 11 years. Means कोई कोई पर्सन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे I कौन है, या तो दीपक है या दीपा है, ठीक है। So ये कह रहे हैं कि मैं अंकुर एनक्लेव में पास्ट 11 ईयर्स से रह रहा हूँ या रह रही हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द इंसेंट्री कंडीशन इन आवर कॉलोनी। मैं आपका एक नोटिस डालना चाहता हूँ जो हमारी कॉलोनी में जो इंसेंट्री कंडीशन है उसके ऊपर। सो ये क्या कह रहे हैं, रबिश एंड गार्बेज लाइव इन हीप, मतलब कचरा और ढेर गंदगी वो सब हीप मतलब ढेर में लगे हुए हैं। लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, बहुत लैक मतलब कमी किसकी है, जो नालियाँ हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कमी है। रेजेज अ परसिस्टेंट फाउल स्मेल इन द एरिया, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेलिंग, एक बैड ओडर उन्हें आ रहा है वहाँ पर। ऑल राइट, सो ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर स्टेगनेट्स, स्टेगनेट्स मीन्स क्या होता है, बहना। जो अब रेनी सीजन में क्या होता है, पानी जो है वो बहता रहता है इन पिट्स, पिट्स मतलब गड्ढों में, गड्ढे जो होते हैं उनमें, ऑन द स्ट्रीट विच मेक्स द होल कंडीशन इवन वर्स। और इससे क्या होती है, जो और भी बुरी कंडीशंस थी उस एरिया की वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। दीज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज विच एक्सपोज द रेजिडेंट्स ऑफ मल्टीपल डिजीज। अब ये क्या होता है, ये सब क्या लेते हैं, एक ब्रीडिंग ग्राउंड लेते हैं द मॉस्किटोज का, जिससे क्या होता है मल्टीपल डिजीज आ जाती है, लाइक डेंगू मलेरिया एक्सेट्रा, ये डिजीज से वो सफ़र कर रहे होते हैं। आर कॉलोनी हैज़ बिकम एन
unhealthy and disease. So here means Deepa and Deepak says कि हमारी जो कॉलोनी है वो बहुत unhealthy और disease वाली हो रही है. Prone area, पूरे एरिया में every day someone or other is succumbing to deadly disease. Succumbing means die. This word succumbing means हर दिन या हर दूसरे दिन कोई ना कोई deadly disease से मर रहा है, succumbing हो रहा है. Some of the families have also shifted lock, stock and barrel to better localities. तो क्या कर रहे हैं कि जो मतलब बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, बेटर लोकेलिटीज में वो शिफ्ट होना चाह रही हैं. So you are requested to take an immediate remedial action to set things right. तो at the end conclusion होता है, request कर रहे होते हैं हम offend नहीं हो सकते हैं any complaint letter में. Remember this thing always. So you just request to them कि thank you, request है कि आप immediate कुछ remedial actions लें हमारे इस problem के. Then thanking you, ये आपका closing हो गई. Then yours faithfully and your name, that is Deepa. Alright, so this is the official letters. Now let's see some business letters also. Business complaint letter. So let's start the question. You had bought a mobile phone from a reputable showroom in Mumbai, but after a month it developed a serious fault. आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया एक रेपुटेड शोरूम से जो मुंबई में लोकेटेड है, बट एक महीने बाद उसमें कुछ फॉल्ट स्टार्ट हो गई. राइट अ कंप्लेन लेटर टू द मैनेजर. अब कंप्लेन लेटर किसको लिखना है आपको? मैनेजर को. आस्किंग फॉर इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम. आस्क करना है जल्दी से, या तो इसको रिपेयर कर दो या फिर इसको मुझे एक्सचेंज कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो. यू आर शादिक और राजिया. या तो आप इफ यू आर बॉय देन यू आर शादिक, इफ यू आर अ गर्ल देन यू आर राजिया. And your address is 123 TT Nagar, Bhopal. So here the receiver address that is in Mumbai, and किसको लेटर लिखना है? मैनेजर को लिखना है, एक शोरूम के मैनेजर को लिखना है. And you are Sadiq or Razia, and the sender address that is Sadiq or Razia address is also given in this question, that is 123 TT Nagar, Bhopal. So the answer would be, first is the sender address, then we should write 123 TT Nagar, Bhopal, then we put date, then after the manager. अब मैनेजर गिवन है बट एड्रेस गिवन है, मुंबई में लोकेटेड है, बट उनके ऑफ कोर्स शोरूम का कुछ नाम होगा, तो हमने शोरूम का कुछ इमेजिनरी नाम लिया, शिव राम एंड सन्स. इट्स लोकेटेड इन मुंबई. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डियर सर, देन सब्जेक्ट कंप्लेन अगेंस्ट अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन. तो आपको कंप्लेन करनी है किसके अगेंस्ट में? जो डिफेक्टिव मोबाइल फोन है उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं. क्लियर? सो द बॉडी टाइप. सो आई बॉट एन. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मोबाइल फोन आपने लिया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, खुद के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं देना है. वॉट एवर इज योर प्रोडक्ट, यू जस्ट मेंशन द प्रोडक्ट डिटेल्स, नॉट योर डिटेल्स. Alright, so I bought an LG Nexus 5 from your showroom. White receipt number 123 dated 15 September so and so year. So मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कि मैंने आपसे कौन सा फ़ोन लिया है, LG Nexus 5 लिया है आपके शोरूम से, एंड माई रिसिप्ट नंबर इज़ 123 एंड डेट इज़, कब मैंने परचेज किया था, इट्स 15 September और ईयर. सो हम ईयर मान लेते हैं 2021. सो द फोन has a warranty of 3 years. White, तो फोन की वारंटी कितने ईयर्स की थी? 3 years. गारंटी कार्ड नंबर इज 123, वैलिड अप टू 30 अगस्त 2021. अब जो वैलिड गारंटी कार्ड है वो इतनी तारीख तक वैलिड है. क्लियर? अब आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द फोन हैज डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैग. स्नैग मीन्स बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसमें, एंड स्टॉप्ड वर्किंग. टेक्निकल स्नैग्स आ रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, काम नहीं कर रहा है. इनफैक्ट जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर इट परचेज, इनफैक्ट कुछ ही दिनों बाद जब इसे खरीदने के कुछ दिन बाद, इट हैड स्टार्टेड गिविंग मी ट्रबल ऑफ एंड ऑन, बट आई रिलेटेड इट टू द कनेक्टिविटी इशू और सम माइनर फॉल्ट. सो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने लिया था कुछ दिन बाद से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये
ऑटोमेटिकली ट्रबल कर रहा था ऑफ एंड ऑन में, बट आई थॉट कि इसमें कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहा है, सम माइनर फॉल्ट दैट आई थॉट वुड सेटल विथ टाइम. So I thought means Razia thought or Shadik thought कि मे बी कुछ टाइम के बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा, बट सिंस इट इज स्टिल इन वारंटी पीरियड, तो अभी भी वारंटी पीरियड में यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस इट इमीडिएटली. आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको इमीडिएटली रिप्लेस करें. नीडलेस टू से दैट मोबाइल फोन्स आर नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसिटीज दीज डेज. तो यहाँ पे उसने लाइन मेंशन करी है, सी मोबाइल फोन्स इट्स लग्जरी सिंबल नहीं है बट नेसेसिटी है. Nowadays means these days की जो necessities है, early and appropriate action will be highly appreciated. और अगर आप जल्दी से एक्शन लेंगे, appropriate actions लेंगे, तो उसको मैं highly appreciate करूँगा. So yours faithfully रजिया और सादिक, आप कुछ भी यहाँ पे mention कर सकते हैं. Alright, so with this we come to an end of the letter of complaint examples. I hope you all have must understood this well. So thank you for watching and stay safe.